Before starting, I just want to know more about you, your introduction in Mintliff Dental. So I'm Dr. Vandana Thakran. I am the founder and director at Mintleaf Dental. We have multiple clinics in Gurgaon and NCR. And we started about 10 years back, 11 years back in 2014. And we have certain initiatives as well, which is for the society because it is our way of giving back to the society. We started Mintleaf with the purpose to give a very affordable and ethical dentistry to one and all, while maintaining all the international standards that we can in the name of dental treatment for one and all. So dental care is definitely a very underrated sector. लोग इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते. So we'll be talking about everything. But so why did you decide to become a doctor? Why did I decide to become a doctor? Yes. When I was a kid, around 10, 11 years old, so my mother suffered a very grave health issue and she had to be operated, and it was like she was on the brink of going off. There was this belief that a doctor saved my mother. So that was somewhere on my mind that I have to become a doctor, because that's very powerful, and that's very, you can go and touch places and people's lives in that way. So And that was one. And why dentistry? Dentistry that came later because I wanted to be a surgeon. Okay. But while we were taking admission in the medical school, then I saw that dentistry is one of the very neglected fields of our body. Right. And so neglected, and it has a lot of scope for improvement, to work upon. And the best part was that dentistry also has a branch called maxillofacial surgery, where I can pursue my passion for surgery as well as take the whole, dental health and oral health to the another level. So I was very much okay with pursuing dentistry. So you have, obviously before starting this, so you have gone through a lot of things and done a lot of things, the surgeon stuff. So take me through that journey. How did that start from your education to now opening your own clinics? So I did my graduation and post-graduation from PJMS Rohtak, and then I did my residency from Maulana Azad Medical College, New Delhi. That was like 8 years of study and then 3 years of residency. So that was 11 years of very hardcore maxillofacial surgery and dentistry, which I totally enjoyed at that time, because that is one thing that I wanted to do. So I was very passionate about it. And the last 6 years where I was doing my post-graduation in surgery and then as a residency in surgery, so that was the moment, and those years I actually enjoyed a lot, because I was doing what I always wanted to do without that that fear of where will the earning come from and all that. So it was a good phase. Of course, we worked very hard and we learned a lot. Like every day we used to see hundreds of patients in terms of surgeries. We did complicated surgeries even under local anesthesia and all that, because there is so much patient load and you learn so much. And surgery is all about skill. The more you work, the more you will learn. Right. So to make one, very experienced with the knives and with all that stuff. So it was a good phase, and I got very good mentors at all levels. And I'm still in touch with them, and they're like gurus for me. And so everything was like, those 11 years were the foundation which actually laid it for whole of my life. So it was a wonderful learning and a wonderful period at that time. So journey has been amazing. So you started your first clinic in 2014, I guess, right? Yes. So I just want to know, what was the biggest struggle at that time? You thought of opening your own clinic, and the way that you have scaled it, definitely it's tremendous. So उसके बारे में आप बताओ कि what was the biggest struggle? माइंड में क्या थॉट था कि अभी स्टार्ट करना है, सही तरीके से करना है, क्योंकि जस्ट ओपनिंग अ क्लिनिक इज अनदर थिंग, बट विद अ पर्पस ऑफ डूइंग समथिंग इम्पैक्टफुल फॉर द इकोसिस्टम, so that is different thing. तो उस जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए. Aman, I call myself as a accidental entrepreneur, okay? Because on the front line, I did not want to come into the private practice, because it's altogether a different ball game we do in the government practice. Right. Because there we are actually, treating, and we don't
have to worry about the sustenance of the system. While coming into the private practice, I knew that I cannot compromise on the quality of my work or the materials that I'm using or the space that I'm creating or the services that I'm giving to the patient. But there is a cost involved in that. Right. So we have to balance that. So that was the struggle. The biggest struggle was that being a maxillofacial surgeon, I just wanted to do the maxillofacial surgeries. And there was a problem when I talked to the other doctors, other dentists, other MD dentists. So they all wanted to do what they were postgraduates in, what they were trained into. तो एक क्लिनिक खोल लेना और फिर वहां पे अपने रेवेन्यूज को थोड़ा सा कंट्रोल में रखने के लिए खुद ही सब कुछ करते रहना, वो एक सही तरीका नहीं था. तो अगर हम मुझे सही तरीके से करना है तो उसमें ये कि डेंटिस्ट्री में 9 डिफरेंट फील्ड्स है, तो 9 मुझे स्पेशलिस्ट चाहिए वो काम करने के लिए, और उन सबको किस तरीके से मुझे एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना है और सर्विसेज को, क्वालिटी को मेंटेन करके रखना है, साथ में रेवेन्यू भी जनरेट करना है. सो दैट वाज द बिग स्ट्रगल टू बिगिन विद. And what was the one mistake that you did that time जो आपने in a journey सीखी when you were starting up? Starting up में mistake तो बहुत सारी starting में रहती हैं, लेकिन over the time I have everything about scaling up. I have learned through the journey. How to do marketing, how to handle the finance, how to do business, उस promotions कैसे करनी है. So everything was like, we are never taught this thing in our medical schools. So everything was like every day we used to learn a new thing, and starting from वो pamphlets से लेके और किस तरीके से digital उस पे आना है और word of mouth and everything. तो वो every day was a learning. So that is how slowly we scaled up. Right. So when it comes to offline operation, obviously बहुत सारे expenses होते हैं. You have to manage everything, salaries, infrastructure. Correct. और अच्छी qualities की service देनी है. And apart from that, you as a doctor, you have to keep something in your mind कि you have a purpose for that, right? You are serving people. तो वो चीजें भी हमें लेके चलनी पड़ती है. So balancing both these things, वो आपने कैसे करा? And anyone starting or planning to start, how they can maintain both the things, purpose with the business. देखिए अमन, इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने पर्पस को, या जो भी आपका फाइनल एक चीज है जो आपका ड्राइविंग फोर्स है, उसको नहीं भूलना है कि हमारा ये है. तो मेरा जो पर्पस मेन था वो ये था कि मुझे जो भी मेरा लर्निंग है, जो मेरी स्किल्स है या जो मेरी एजुकेशन है, उसको मेरे को सही तरीके से काम करना है, विदाउट डिस्पाइट कि वो बंदा मुझे पेशेंट पे कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है. सो दैट इज हाउ इवन जो इनिशियली गार्ड्स और आसपास के लोग होते थे वो आते थे, वी नेवर यूज्ड टू डिनाई एनीथिंग. सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है टीम ढूंढना अपनी, क्योंकि स्किल किसी को सिखाई जा सकती है, लेकिन जो उसका एक बेसिक नेचर है वो चेंज नहीं किया जा सकता इंसान का. सो आई हैड टू find people, skilled doctors from the best dental colleges and chairside assistants and everyone who were at the same page as we were in terms of services that we have to give to our patients, because we are dealing with somebody's body, somebody's health. तो हम उसमें कोई भी एक question mark नहीं डाल सकते या कहीं पे कोई कमी नहीं रख सकते. When we are charging you, then we have to give you that kind of services. तो उसके अंदर सबसे मेन चीज आती है ethics और ट्रांसपेरेंसी. तो ये दोनों में हमको जो हायरिंग करनी है, जो टीम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपका उसके अंदर एक प्ले करती है कि जब अगर टीम ठीक नहीं है, मैं अकेले खुद कुछ भी नहीं कर सकती. सो एवरीवन, इवन फ्रॉम माय डेंटल असिस्टेंट से लेके मेरे डॉक्टर्स और क्लिनिक हेड, सब लोग दे आर ऑन द सेम पेज दैट व्हाट वी हैव टू डू. तो एक बेसिक है कि क्लिनिक में कोई भी पेन लेके आ रहा है तो हम उसको बिना पेन रिलीफ किए नहीं भेजेंगे, वेदर ही और शी पेज और नॉट, क्योंकि उसके बाद का जो ट्रीटमेंट फॉलो हो रहा है वो हम उनको बताएंगे. वो चाहते हैं तो ठीक है, नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, बट वन शुड नॉट गो आउट विद पेन फ्रॉम मिंट लीफ क्लिनिक. एंड ओवर द इयर्स यू हैव सर्व्ड ओवर 40,000 प्लस पेशेंट, एंड दैट इज ह्यूज. सो व्हाट वाज दैट वन मोमेंट जहां आपको लगता है कि दिस वाज ऑल वर्थ इट, opening a clinic or opening a company? So this was our second center. First center was Sector 47. So when we just opened this center, so a person in my brother's company, so his wife called me and he said that the person has met with an accident and he has severe trauma and injuries to his face and head region, and now they cannot afford the treatment wherever the private hospital they were admitted to in the emergency. They cannot afford it. They got my reference from someone and now can you help? So I said, okay, bring all the reports and everything, and we came here.
They came here. I saw all the CT scans and everything. So his jaw was fractured at 2 points, but he cannot afford the OT ka kharcha and all that. So we decided to do it under local anesthesia on the dental chair. I explained it to him. What you will feel there, this will be a little bit of discomfort and everything, but the whole family was so cooperative. And this is not the first time that I was doing this, because in our government colleges there is so much patient load that we do sometimes we have to do in emergency on the dental chairs. But here to tell them, and I was able to do the similar kind of treatment very properly on the chair, and the patient cooperated and the family cooperated. And after that, I'll show you his pictures. He had such a big scar, and then that was all revised, and he came out to be such healthy person after that. Still he visits us, and at that moment when he was like very happy with his treatment and they came back with all that gifts and everything, then I was like, somewhere I'm doing something good. It's all totally worth it if I continue working in the same manner. So that's one thing that I could remember. Dental care is definitely underrated. जब तक आपके दांत में दर्द नहीं होगा, you'll not visit a dentist. Correct. तो कुछ questions हैं, obviously everyone want to know. तो as a Indians हम dental care को इतना ignore क्यों करते हैं? As a Indian मैंने देखा है हमारे Indians में ना awareness नहीं है. ठीक है, तो सबसे जो main important चीज है वो awareness है. Once they are aware of, for example, अभी पीछे कोविड आया था, now they are aware of कि ऐसे कुछ हो सकता है, तो every Indian has started doing 6 monthly अपने चेकअप्स हो गए स्टार्ट और सब कुछ हो गया. तो अभी उनको अवेयरनेस नहीं है कि जब अवेयरनेस जितना बढ़ेगी ना, उतना ज्यादा हमारे इंडियंस डेंटल क्लिनिक्स में और डेंटल ट्रीटमेंट के लिए जाने लगेंगे. They should know that oral health is the beginning of their health for the body. Oral health doesn't come secondary. It is the primary thing which you should take care if you want to keep a healthy body. एंड फियर मॉन्गरिंग जो होता है हर सेगमेंट में, आप किसी भी हेल्थ केयर में जाओ, तो व्हाट इज द बिगेस्ट डेंटल मिथ दैट यू वांट टू ब्रेक टुडे? बिगेस्ट डेंटल मिथ यही मैं ब्रेक करना चाहती हूँ कि हम ओरल हेल्थ को सेकेंडरी लेते हैं, कि अगर हमारा पूरा बॉडी ठीक है, मुंह में अगर हमारे कीड़ा लगा हुआ है, या हमारे गम्स ब्लीड कर रहे हैं, या हमारे कोई अल्सर्स हो गए हैं, या हम दांत निकल के गिर गए हैं, पायरिया हो रहा है, डजंट मैटर, मेरा बॉडी ठीक होना चाहिए. नहीं होगा. मोर द रीजंस व्हाई, बिकॉज आज के दिन में जैसे जैसे स्टडीज ज्यादा आ रही हैं, पायरिया और गम हेल्थ इज रिलेटेड टू योर एल्जाइमर्स एंड हार्ट हेल्थ. ठीक है, जितना ज्यादा गम टूथ डिके हो रहा है, द इन्फेक्शन कैन वेरी वेल रीच एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी. Whatever you're eating is through your mouth. Even medicines आप ले रहे हो वो मुंह से ले रहे हो. So the myth is कि oral health can be taken care of. We have to take care of our general body health. So I want to tell that everything starts from oral health. हम अपनी न्यूट्रिशन लेते हैं, वो भी मुंह से लेते हैं. खाना खाते हैं न्यूट्रिशन के लिए, उसके साथ कितना गंदा अंदर जा रहा है वो सबको हमें देखना पड़ेगा. तो oral health comes first, then comes the body. ठीक है, तो वो वाला एक चीज है जो कि ये जो मिथ लोगों के दिमाग में है कि हम बॉडी का ध्यान रख रहे हैं तो दांत वांत तो ठीक है, कोई बात नहीं, बन जाएंगे. वो नहीं होता है. व्हेन वी स्टार्ट लूजिंग दैट, देन वी रियलाइज इट्स इंपॉर्टेंस. So it is very important that, and high time that we start giving importance to oral health as well. Right. And what is the worst disease that can happen to you if you are not taking care of oral health? क्योंकि कुछ डॉक्टर्स का ये भी कहना है, I've seen a reel, कि आपको कैंसर्स भी हो सकते हैं उसके कारण. So what is the worst thing that can happen? देखो, कैंसर सिर्फ मुंह का नहीं, मुंह में कुछ चीजें ऐसी हैं, फॉर एग्जांपल सुपारी च्यूइंग है, उससे सिर्फ मुंह का कैंसर नहीं होगा, उससे इसोफेगस का, पेट का, इंटेस्टाइन का कैंसर भी हो सकता है. सेकंड, जो ओरल कैंसर किसी भी वजह से हो, चाहे वो ट्रॉमा की वजह से हो रहा है, तंबाकू च्यूइंग या स्मोकिंग की वजह से हो रहा है, वो बॉडी में कहीं पे भी जा सकता है. ओरल कैंसर की वजह से डेथ क्यों होती है? इसीलिए होती है क्योंकि वो कैंसर मेटास्टेसाइज कर जाता है बॉडी में कहीं पे भी. थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमारा जो कोई जॉ पेन हो रहा है या कोई कहीं पे भी हो रहा है, दैट इज वेरी मच रिलेटेड टू हार्ट हेल्थ. हमारे गम्स में जो इन्फेक्शन है, जो बैक्टीरिया है, वो डायरेक्ट ट्रेवल करते हैं टू द हार्ट. ठीक है, तो जो हार्ट की लाइनिंग है और जो हार्ट की वॉल्व्स हैं, उनके ऊपर वो पनपते हैं, तो वो हार्ट अटैक और हार्ट डिजीजेस भी कॉज कर सकते हैं. रिसेंट स्टडीज में एल्जाइमर्स जो है वो हमारे ब्रेन की तक पहुंच रहे हैं, एल्जाइमर्स हो सकता है, आंख खराब हो सकती है, जो साइनसेस हैं, ये सब है. यहाँ पे हमारे कहीं भी कोई पस बन गई, कोई दांत खराब हुआ, पस बन गई. मैंने चेयर पे पेशेंट्स जाते हुए देखे हैं, बिकॉज इतना पस बन गया कि वो एकदम से चेस्ट में जाता है एंड एवरीथिंग जस्ट शट्स ऑफ, सेप्टिक शॉक में जाके पेशेंट डाइज. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ द ओरल हेल्थ एंड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड, या कोई बात नहीं अभी सिकाई कर ली, या जो भी हमारे घर के नुस्खे चलते हैं वो ना करके, जैसे ही फर्स्ट चीज हो तो हमें जरूर एक बार डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए.
सो डेंटल अवेयरनेस की हम बात तो करते हैं, बट यूजुअली लोगों का ये कंप्लेन है कि डेंटल केयर इज एक्सपेंसिव इन इंडिया। सो आपका उस पर क्या टेक है? बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। डेंटल केयर इन इंडिया इज नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल। आप बाहर जाओगे, फॉरेन में, यूरोप में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में आप जाओ, पीपल आर नाउ कमिंग टू इंडिया, ठीक है, टू गेट देमसेल्व्स ट्रीटेड। लेकिन अगर मैं बेसिक इंडियंस की बात करूं कि उनको एक्सपेंसिव क्यों लगता है, इसलिए लगता है क्योंकि जब पेन स्टार्ट होता है दे डोंट गो टू द डेंटिस्ट। फिर वो थोड़े दिन बाद वो चीज बढ़ जाती है, दे डोंट गो टू द डेंटिस्ट। जब वो अनबियरेबल पेन हो जाता है तब वो डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, और तब वो चीज उन्हें लगता है कि डेंटल ट्रीटमेंट पेनफुल भी है और साथ में एक्सपेंसिव भी है। क्योंकि जो चीज जितना ज्यादा बिगड़ते चले जाएगी उतना ज्यादा उसको ठीक करने में हमें खर्चा आएगा। तो वो उसी तरीके से आप समझ लो इसको कि हम गाड़ी की सर्विस कराते हैं ना, तो अगर हम उसकी सर्विस नहीं कराते रहे तो वो एकदम से ब्रेक डाउन होकर एक दिन सड़क पे खड़ी हो जाएगी, तो वो आपके ऊपर भारी खर्चा आ जाएगा। और अगर हम सर्विस करा रहे हैं उसकी तो वो आपको एक्सपेंसिव नहीं लगेगा कि ठीक है इंश्योरेंस में भी कवर हो रहा है और सर्विस भी चल रहा है, नॉर्मल चल रही है, गाड़ी अच्छी चल रही है, जहां हमको जाना है वहां जाना है, तो आराम से हम पहुंच रहे हैं। तो दिस इज द ओनली थिंग जिससे कि इनको लगता है कि डेंटल ट्रीटमेंट इज एक्सपेंसिव। इट इज नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल। इफ यू वांट टू सी द एक्सपेंस, गो टू यूरोप, गो टू यूएस और गो टू ऑस्ट्रेलिया, जहां पे लोगों का भी जो डेंटल टूरिज्म चल रहा है उनका आने जाने का खर्चा प्लस ट्रीटमेंट का खर्चा, एवरीथिंग will is still less than the what they have to pay for treatment there. So just have to reach at the right moment, don't delay it. So usually कुछ डॉक्टर्स का था, I've seen in videos only, कि जैसे कि जब when you wake up तो डायरेक्टली आपको ब्रश नहीं करना चाहिए, मे बी यू इनहेल समथिंग लिक्विड या फिर फूड, तो उस पे क्या टेक है आपको? पहले ब्रश करके यू हैव टू ईट समथिंग और यू कैन ईट डायरेक्टली, और व्हाट इज द राइट वे? बेसिक द थिंग इज दैट यू शुड बी ब्रशिंग ट्वाइस डेली, ठीक है। तो जो भी प्लाक जो है वो एक थिन लेयर है जो दांत के ऊपर जमा होती है हर 12 घंटे में, तो हमें उसको निकालना है, ठीक है। वो एक हम जेंटल ब्रशिंग से उसको निकाल सकते हैं। अब 12 घंटे में हमें ब्रश कब करना चाहिए? आइडियली है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं टाइम के हिसाब से, तो आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के कुछ टाइम के बाद करें। ब्रेकफास्ट हो गया आपका, उसके 15-20 मिनट तक थोड़ा सा जो भी मुंह में सलाइवा है उसको, एसिड्स वगैरह आए हैं खाने से, उसे रेस्ट करने दें। 15 मिनट बाद अगर आप ब्रश करेंगे, दैट विल कीप योर माउथ ओके फॉर नेक्स्ट 12 आवर्स till dinner, or maybe for 5-6 hours till your lunch or anything you eat. And then again after dinner you should brush so that your night time goes very peacefully and there is no chance of any infection at that. And what is that one daily habit that is silently killing your teeth? और कौन सी ऐसी हैबिट है जो आपको डेली करनी चाहिए and eventually that will help you to make your teeth better? Brushing तो हमारा है ही। सेकेंड इंपॉर्टेंट जो हमारे इंडियंस में ही मैंने देखा है बहुत मिसिंग है, वो है फ्लॉसिंग या इंटरडेंटल ब्रशिंग। दो दांत के बीच में, दो दांत के बीच का जो सरफेस है दैट इज नियरली 30%। 70% जो है वो आपका च्यूइंग सरफेस है जो आप ब्रश से साफ कर लेते हो। बीच में जो है इंटरडेंटली दो दांत के बीच का वो नहीं कर पाते, उसके लिए वाटर फ्लॉसर, जर्नल थ्रेड फ्लॉस या इंटरडेंटल फ्लॉसिंग हमको यूज करनी चाहिए। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज जो हमको डालना चाहिए, इंस्टेड ऑफ यूजिंग एनी अदर माउथ वॉश, एक नमक पानी कुल्ला को हमें उसके अंदर इंट्रोड्यूस करना चाहिए। वार्म सलाइन रिंसेस, वार्म सलाइन विल बी वेरी एंटीबायोटिक एज वेल एज एंटी इन्फ्लेमेटरी फॉर द टीथ। तो वो ये 2-4 चीजें रहेंगी तो गम स्वेलिंग और जो भी हमारे अंदर इन्फेक्शन है या जो भी हमने बाहर से खाना जो भी स्टिक हो रहा है वो सब हमारा निकलता रहेगा और उतना ही हमारा ओरल एनवायरनमेंट जो है वो हेल्दी रहेगा। नॉर्मल ब्रशेस वर्सेस इलेक्ट्रिक टूथब्रश, कौन सा ज्यादा सेफ है एंड व्हाट इज द राइट टाइम? कोई बोलता है 1 मिनट करो, 30 सेकंड, कितने टाइम ब्रश करना चाहिए और कैसे, राइट वे क्या है? देखो आइडियली ये है कि हमें 2 मिनट ब्रश करना चाहिए, ठीक है। उसके लिए आप टाइमर लगाना चाहते हो, टाइमर ठीक है। आजकल इलेक्ट्रिक तो नहीं कहूंगी मैं, लेकिन कुछ सोनिक ब्रशेस आ रही हैं जो कि वाइब्रेशन से करती हैं। दैट इज द टेक्नोलॉजी सिमिलर टू जो हम क्लिनिक में स्केलिंग वगैरह के लिए, क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं, वैसा सा कुछ टेक्नोलॉजी उसमें डाला हुआ है। तो सोनिक ब्रश को आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये है कि घुमाना तो आप ही को पड़ेगा। सो जस्ट दैट कि यू आर अ लिटिल बिट लेजी कि मुझे ध्यान नहीं देना, तो सोनिक ब्रश इज गुड इनफ। अदरवाइज आप अपने आप करें, बहुत जोर से हमें ब्रश नहीं करना है, कम से कम 2 मिनट के लिए हमें ब्रश करना है और दिन में 2 बार हमें ब्रश करना है। So I have personally been through lot of stuff in dental care. मैंने RCT भी कराया था and all that. So painful तो होता है, expensive होना doesn't matter, painful बहुत होता है। So आपने इतने सारे पेशेंट को देखा, so one story that touch your mind कि हाँ अभी तक आपको याद हो कुछ ऐसा इम्पैक्ट या वैसे किस कंडीशन में पेशेंट आया एंड
You treated तो them. ऐसे ना बहुत सारे स्टोरीज हैं अमन, लेकिन आप जैसे कह रहे हो कि पेनफुल जो होता है, पेनफुल वो इसीलिए है क्योंकि जब आप आ रहे हो पेन में आ रहे हो और उस वक्त जो हमारा टिश्यू है बहुत इन्फेक्शन हो चुका है उसके अंदर बहुत ज्यादा सूजन है, तो उसको ठीक करने में आपको पेन हल्का बहुत हो सकता है. नंबर 2, पेनफुल इसलिए भी हो सकता है कि वेदर दैट थिंग इज डन बाय द राइट स्पेशलिस्ट. फॉर एग्जाम्पल मैं सर्जन हूं तो मैं अगर सर्जरी करूंगी तो वो बेटर होगा रादर देन कोई आरसीटी स्पेशलिस्ट करेगा. ऐसे ही अगर मैं आरसीटी करूंगी तो वो शायद उतने अच्छे से नहीं कर पाऊंगी जितना कि एक आरसीटी स्पेशलिस्ट करेगा. ये वैसे ही है जैसे एक ऑर्थोपेडिशियन को बोलो कार्डियक सर्जरी कर दो, तो है तो दोनों डॉक्टर ही, दोनों एमएस है, एक हड्डियों का है एक हार्ट का सर्जन है, लेकिन वो उतने अच्छे से नहीं कर सकता. तो एक डेंटिस्ट होने का मतलब ये नहीं है. तो यू हैव टू बी अवेयर कि कौन हमारा ट्रीटमेंट कर रहा है. दूसरी चीज, पेनलेस उतना ही होगा जितना कि आप अर्ली पहुंचेंगे. एंड नंबर 3 इज, इफ यू आस्क मी अबाउट द स्टोरीज, there are n number of overwhelming responses that we get ki I was always so scared about this, but we did not feel anything here. There was one patient who was traveling from Kenya. She was getting her treatment from Medicity. So she had some jaw problem, so she searched online and somewhere, so she came to us. And then in week or 10 days, we treated her, then her husband and everything. And then later she sat with us and she was like कि मुझे आप लोग केन्या आके क्लिनिक क्यों नहीं डालते हो, because there are so many people there who need the right kind of treatment. She could not, she said कि this kind of problem I was not never given a solution to this. N number of doctors she has visited. तो ये वाले जब ऐसे आता है तो लगता है कि द पेन, द डिस्कम्फर्ट, दैट इज वेरी यूनिवर्सल थिंग, एंड द राइट ट्रीटमेंट एंड द एथिकल ट्रीटमेंट दैट इज ऑल्सो वेरी यूनिवर्सल एंड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सली वेदर यू बिलोंग टू विच एवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. सो हमारे पास पूरा वही ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप से पेशेंट्स आते हैं, उनका पेनलेस ट्रीटमेंट होता है. सो देर लाइक ऑलवेज वेरी थैंकफुल फॉर द पेनलेस थिंग. अनदर कुछ लोग होते हैं जिनको ज्यादा नहीं पता, वो ये भी सोचते हैं कि मेरे ऊपर 4-5 डॉक्टर क्यों काम कर रहा है. ठीक है, तो उनको समझाना पड़ता है कि रूट कैनाल स्पेशलिस्ट आपका रूट कैनाल कर रहा है, फिर क्राउन स्पेशलिस्ट क्राउन दे रहा है, कोई दांत निकालना है तो सर्जरी सर्जन कर रहा है. तो इस तरीके से रहता है. बट ऐसे बहुत कुछ सुनने को मिलता है कि द एक्सपीरियंस वाज गुड एंड ऑल दैट. सो हेल्थ केयर इन जेनरिक में बोलूँ तो कंडीशन एवरीवन नोज इन इंडिया, एक्सेस नहीं है, जनरल लोगों के पास एक्सेस नहीं है किसी भी सेक्टर में आप चले जाओ. डेंटल में भी आई हैव सीन अ पैटर्न, एंड इन जेनरिक आल्सो पीपल फ्रॉम आउटसाइड दे हैव स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया फॉर मेडिकेशन, एंड नाउ वी हैव डेडिकेटेड कंपनीज हु आर हेल्पिंग देम कि आप इंडिया में आओ, इलाज कराओ. So is India becoming a new tourism spot for dental? Of course, it has become a tourism spot for medical as well as dental, because first of all, India is such a beautiful country. So they would look forward to come here, visit the country as well, and also getting the treatment done. As I told you, क्योंकि बाहर का treatment में जो उनको cost पड़ रहा है, वो उनका यहाँ आना, रहना, खाना पीना और साथ में ट्रीटमेंट कराना, that either equals or even less than what they pay there in their own country, especially the European, Australian and the American people. So definitely India is becoming a universal hub also, because the doctors here are so trained now, so skilled, and even those who have gone for higher studies in outer countries, they are coming back and trying to serve the people here. So doctors are working very skillfully, very hard, and they are also bringing all the technologies at a very affordable price. So that is why I think medical and dental tourism is a big thing for India, and it will not only boost the health sector but also the general economy of the country as well. Right. So everyone knows we have the best doctor in the world, right? And even outside the country also, everywhere Indians have been serving in medical field. So when it comes to India, क्या आपको लगता है कि do we have that enough perks for the doctors? And उनको जब private hospitals खुद के खोलने पड़ते हैं, definitely सबके अपने अपने objectives होते हैं. But when it comes to government facilities, are they getting something that they deserve? So India is a big country. तो यहाँ पे हमारी जो population है 140 crores plus है. Government can do as much. So basically, I believe that every person, every citizen should take that responsibility of taking the country forward. Okay? As doctors, whatever I can do, I can provide a healthcare to everyone, irrespective of what they earn, what caste they are, where do they belong.
तो वो सब चीजें इस तरीके से अगर धीरे धीरे सब लोग करेंगे, गवर्नमेंट में ठीक है अभी कुछ सेक्टर्स हैं जहां पे अपॉर्चुनिटीज अभी गवर्नमेंट की कम है, बट ऐसा नहीं कह सकते कि वो नहीं बढ़ रही हैं, धीरे धीरे होंगी। There are so many problems at the basic level, जिसको कि करना पहले, अब लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, बिजली पानी नहीं जा रहा है, तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। फिर ऑफ कोर्स हेल्थ में भी आ रहा है, इतने अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, मैं इतने अच्छे डॉक्टर्स को जानती हूँ, डॉक्टर नारायण शेट्टी हैं और अपने डॉक्टर त्रेहान भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एट ग्रास रूट लेवल कर रहे हैं। तो वैसे ही सब कुछ मुझे लगता है कि हम भी ऐसा ही कर सकते हैं, क्योंकि पेन डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन रिच एंड पुअर। हमने जो कर्मा स्टार्ट किया उसमें भी हमारा मेजरली यही था कि हम किस तरीके से एक ऑल इंक्लूसिव एक प्लेटफॉर्म बनाए जहां पे कि हम सबको इंक्लूड करके दे सके सर्विसेज, प्लस उसका फायदा एज अ कम्युनिटी, एज अ स्टेट लेवल पे और एज अ कंट्री लेवल पे भी होना चाहिए। राइट। एंड व्हेन इट कम्स टू प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स, few of them are following the right practices. For example, you are doing it with a purpose कि ठीक है आप जितना कर सकते हो you are doing it. But जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स की एंट्री भी जब इंडिया में हुई थी तो पर्पस वाज कि जो गवर्नमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है, जिसका इलाज नहीं हो पा रहा और बेटर इलाज चाहता है, दे कैन गो टू प्राइवेट हॉस्पिटल्स विद बेटर फैसिलिटीज, राइट। अब कुछ सिनेरियो चेंज हो गया कि ठीक है ऑब्वियसली यू नो कि इतना बड़ा देश है एंड इतनी फैसिलिटीज है नहीं, तो अल्टीमेटली यू हैव टू गो टू प्राइवेट हॉस्पिटल्स। बट जो प्रैक्टिसेस हैं दे आर नॉट राइट, the amount of money they are charging, and उनके पे वो moral sense नहीं है। Mostly these people are following the same trends. तो वो क्यों हो रहा है and how we can actually solve that? देखिए वो मुझे लगता है इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आप जिन हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हो ना, उनको लीड कौन कर रहा है? उनको डॉक्टर्स लीड नहीं कर रहे, ठीक है, उनको कोई एमबीए या फाइनेंस गाइज लीड कर रहे हैं। तो एज अ फाइनेंसियर अब आप अपना काम कर रहे हो, तो अपने काम में आप स्पेशलिस्ट हो, तो आप जिस भी चीज में देखोगे आप अपने लिए इसकी अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे, ठीक है। तो ऐसे ही वो फाइनेंस के लोग हैं, वो कमाई की वो ढूंढते हैं, उन्होंने हॉस्पिटल बनाया, उनको कमाना है। बट वो जब आगे जो डॉक्टर्स हैं उनको ये चीज को देखना है कि किस तरीके से हम क्या काम कर रहे हैं। बट कभी कभी होता है वहां पे प्रोबेबली आई एम जस्ट गेसिंग कि लोड ज्यादा है और या उनको टारगेट ज्यादा दिए जा रहे हैं, वॉट एवर इट इज। बट द मेन थिंग इज कि वेर एवर द डॉक्टर विल लीड, यही हमारा यहाँ का था कि वी वर शाई ऑफ टेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट्स बिकॉज वी डिड नॉट वांट एनी काइंड ऑफ इंटरफेरेंस, एनी इन डिसीजन मेकिंग, स्पेशली फॉर अवर पेशेंट्स, फॉर माई टीम। किसको कितना सैलरी देना है, ये ठीक है, ये नहीं है। Every doctor and every person who's working in healthcare, they need the remuneration for that because they are working 24/7. हमारी ड्यूटीज इतनी लंबी लंबी होती हैं, 12 घंटे की ड्यूटी हो रही है, 36 घंटे की ड्यूटी हो रही है, 24 घंटे की ड्यूटी हो रही है। तो ये सब चीजें इमरजेंसी में काम हो रहा है, तो उनको जब तक रेन्यूमरेट ठीक से नहीं किया जाएगा, जो भी डॉक्टर लेड है। तो मैंने अपने आप को और अपनी कंपनी को लीड करने का इसीलिए सोचा कि मुझे डिसीजंस लेने हैं कि ये का जो राइट ट्रीटमेंट है हमें वो करना है। द अदर ट्रीटमेंट माइट फेच अस अ लिटिल मोर मनी, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म हम उसको किस तरीके से, उसकी क्या हमारे पास गुडविल आ रही है, पेशेंट रिटर्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लस जो हमारे को उसकी जितना भी उसका रिटर्न्स जो मिल रहे हैं वो किस उसमें मिल रहे हैं। तो जो फेथ है डॉक्टर के अंदर, जब तक फेथ नहीं होगा ना तो वो द इंस्टीट्यूशन विल नॉट वर्क। तो वो फेथ को मेंटेन करना हमारे लिए प्राइमरी इंपॉर्टेंस है। ऑफ कोर्स द बिजनेस एंड रेवेन्यू कम्स बट दैट इज सेकेंडरी। सो जब हमने स्टार्ट भी किया था फर्स्ट क्लिनिक से, तो यही था कि 6 महीने तक मुझे समझ नहीं आता था, आई कुडंट चार्ज पीपल बिकॉज आई वाज जस्ट सिटिंग देयर कि मैं स्किल के हिसाब से लूंगी तो इट विल बी लॉट, और अगर मैं टाइम के हिसाब से लूंगी तो कुछ भी नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आता था। तो वो बैलेंस बनाना एक बड़ा मुश्किल है, जो कि बड़ी मुश्किल से बनाया गया। पर हमारी कंपनी में सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरीके से पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं और उनको ट्रीट करना और अपनी सर्विसेज उसको देना, द राइट सर्विसेज। ये नहीं कि बढ़ा चढ़ा के ठीक है भाई पेशेंट आ गया तो अब जो भी है, और द रेवेन्यू एंड द मनी विल फॉलो। सो डेंटिस्ट्री एज अ प्रोफेशन, फॉर एग्जांपल अभी जस्ट फॉर फन थिंग, फॉर एग्जांपल कोई मेडिकल कॉलेज में है एंड अगर उसने डेंटिस्ट्री चूज किया तो यूजुअली लोगों का ये होता है कि नंबर्स कमाए होंगे, दैट्स व्हाई दे चूज डेंटिस्ट्री। तो ऐसा क्यों माइंडसेट बन गया लोगों का कि दे डोंट सी डेंटिस्ट एज अ डॉक्टर या उस लेवल पे कि नॉर्मल सर्जन से अलावा? क्योंकि जब इंडिया में भी और इन द वर्ल्ड भी जो जनरल सर्जन, जनरल फिजिशियन पहले बने,
फिर जब ओरल, जैसे अभी भी हो रहा है, जो मैं अवेयरनेस की बात कर रही हूँ, एग्जैक्टली इट इज फॉलोइंग द सेम पैटर्न। पहले था कि जनरल बॉडी के लिए हमें चाहिए, जब लेकिन धीरे धीरे जब डॉक्टर्स ने पढ़ना शुरू किया, उन्होंने आगे प्रैक्टिस करना शुरू किया, तो उनको समझ में आया कि ये जो चीज है मैक्सिलोफेशियल, ये बिल्कुल एक अलग इकोसिस्टम है। इसके लिए हमें एक अलग से डॉक्टर चाहिए, उसके लिए अलग से पढ़ाई होनी चाहिए। 6 महीने पढ़ाई करके उस 5-5.5 साल का जो कोर्स होता है एमबीबीएस का, उसमें 2 या 4 महीने पढ़ाई करके आप पूरा इसको वो नहीं कर सकते, मास्टर नहीं कर सकते। सो दे रियलाइज इट अ वेरी लेट। तो जब लेट रियलाइज हुआ, तो वो जो स्किल थी, वो जो कॉलेजेस थे, डेंटल कॉलेजेस जो बने, वो लेट बनने शुरू हुए। आई रिमेम्बर इंडिया में ही बहुत लेट आया, फर्स्ट वाज इन कैलकाटा। तो वो जो बने, लेकिन जब वो इसी चीज में हम सिर्फ हेड एंड नेक को प्रॉपर 5 साल पढ़ते हैं और फिर उसके बाद 3 साल उसमें पीजी करते हैं। तो देयर इज अ लॉट टू स्टडी, लॉट टू मास्टर अपॉन। तो इसी तरीके से फिर वो धीरे लेट आया, तो लोगों को लगने लगा कि ये तो बाद में आया है, दे डिड नॉट हैव ट्रस्ट इन दैट। तो इसलिए था। लेकिन अभी में मैं देख रही हूँ बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। इवन आई हैड माई क्लासमेट्स जिनको एमबीबीएस भी मिल रहा था और सब कुछ था, लेकिन दे चोज डेंटिस्ट्री। और आई वॉज ऑल्सो वेरी इंटू दिस कि वंस आई न्यू कि हाँ आई कुड डू सर्जरी इन दिस, तो आई वॉज वेरी मच इंटू इट। एंड तो ये अभी बदल रहा है बहुत ज्यादा, बिकॉज दिस इज अ वेरी गुड प्रोफेशन। एंड यू नो आगे आने चलते चलते देयर विल बी द प्राइम इम्पोर्टेंस, तो वो रहेगा फॉर अ हेल्दी बॉडी। So that's the reason I think. So I can see the word karma. Obviously इसके बारे में बात भी करनी थी, सोशल इनिशिएटिव। तो इसके बारे में बताओ आप, कॉन्सेप्ट क्या एग्जैक्टली में? कर्मा का वही है। देखिए, हमने जब क्लिनिक स्टार्ट की ना, तो एवरीबडी यूज्ड टू कम फॉर ट्रीटमेंट। तो उसमें गार्ड्स, नैनीज, मेड्स भी आ जाते थे, और मेजरली उनका जो एक कंसर्न होता था वो ये होता था कि सबसे पहले आते ही वो लोग यही पूछते थे कि हाउ मच विल यू चार्ज। तो वो बोलते थे उनको कि कोई बात नहीं, चार्जिंग देख लेंगे, इट्स जस्ट दैट कि आप ट्रीटमेंट कराओ। बट दे वर वेरी कंसर्न्ड अबाउट इट, क्योंकि और लोग काफी उनसे इक्वली चार्ज करते थे। तो हमने उनका नियरली फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करना स्टार्ट किया, 100 रुपए 200 रुपए में। एंड उसका थोड़ा रिस्पॉन्स अच्छा रहा, बट वही है, वो मिक्स थोड़ा होके अजीब सा हो रहा था। तो वी डिसाइडेड टू मेक इट वेरी ऑफिशियल। तो 2019 में हमने कर्मा इनिशिएटिव को लॉन्च किया एट अ वेरी बिग लेवल, और जिसमें कि हमने सभी क्लिनिक्स पे अपने 1 बजे से 4 बजे के बीच में ऑल द अंडर प्रिविलेज्ड का ट्रीटमेंट होगा। सो वी कॉल इट कर्मा प्रिविलेज ट्रीटमेंट फॉर द अंडर प्रिविलेज। हमारी जितनी भी क्लिनिक्स होती थी उसमें सभी वही नॉर्मल डॉक्टर्स जो नॉर्मल ट्रीट करते हैं वही उन अंडर प्रिविलेज को करेंगे, लेकिन कॉस्ट नहीं होगी उसकी कुछ भी। सो दिस इज हाउ इट कंटिन्यूड फॉर 5 years, and then on our 10th anniversary last to last year we expanded it। और ये एक हमारा और था कि हमें एक अलग से कर्मा क्लिनिक्स होने चाहिए, तो हमने इसको एक एनजीओ के तरीके से रजिस्टर कराया दर्पण पोर्टल एंड ऑल दैट पे। तो नाउ दिस इज अ कर्मा ट्रस्ट which is a social initiative by Mint Leaf Dental. So Mint Leaf Dental take care of it. So it will be 2 years in March that we are running a separate clinic for all the underprivileged. ठीक है, so Karma was basically हमने फिर उसको एक separate clinic बनाया है, जहाँ पे सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक all 7 days they are taken care of। उसमें हम सब कुछ ट्रीटमेंट करते हैं, starting from preventive treatment, therapeutic and cosmetic dental treatment। और वहां पे हमारे पास ऑल काइंड ऑफ यू नो नैनीज, ड्राइवर्स, मेड्स, रिक्शा, ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स, डिलीवरी बॉयज, तो बहुत सारे ऐसे चीजें सुनने को मिलती हैं उनसे रोज की स्टोरीज की ये मैं इतने दिन से। कोई पर्सनल स्टोरी जो आप शेयर करना चाहते हो दैट चेंज यू? या 20-22 साल का एक लड़का था जिसकी हमने इस पे भी फोटो लगाई हुई है, डिलीवरी बॉय है ये। कुछ डिलीवरी करने आया था, तो मेरे डॉक्टर ने पूछ लिया कि दांत कैसे टूट गया, गिर गया, जल्दी में करते हैं ये लोग डिलीवर, लेकिन मैंने पूछा है बहुत खर्चा है, तो ऐसे ठीक है। सामने के 2 दांत 20-21 साल के लड़के के टूट जाए तो उसको कितना मेंटल ट्रॉमा है और सब है। तो हमने उसको ट्रीट किया, उसको क्राउन्स दिए, कैप दिया, उसका जो स्माइल था वही इटसेल्फ वाज लाइक वेरी हार्टनिंग टू सी, कि जो उसने बोला कि मैं अभी स्माइल कर सकता हूँ। तो वो एक चीज है। सेकंड, मैं एक बार क्लिनिक में एंटर कर रही थी, तो एक ऑटो रिक्शा वाला यहाँ खड़ा हुआ था, वो तंबाकू पान जो ये लोग चबाते हैं उसके पैकेट्स बाहर फेंक रहा था। तो आई आस्क्ड हिम कि क्यों कर रहे हो ऐसा? तो अंदर डॉक्टर साहब ने बताया कि इससे कैंसर हो जाता है। तो बोला तुम खाते क्यों हो? तो उसने मुझे बताया कि हम इसलिए खाते हैं ताकि हमें नींद ना आए।
ठीक है, तो उसके बाद मैंने ये बहुत सारी लोगों से पूछा, जब भी मैं टैक्सी में बैठती हूँ या उबर ओला, जितने भी ड्राइवर्स है, ज्यादातर यही कि हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए और ज्यादा आवर्स क्लॉक इन करने हैं कि हमारी कमाई ज्यादा हो। तो वो कहते हैं कि हम स्मोक नहीं करते हैं क्योंकि स्मोकिंग के ऊपर लिखा होता है, बट इस पैकेट पे कहीं इतना ऑब्वियसली नहीं लिखा हुआ है कि इससे कैंसर होगा। हमें सिर्फ ये लगता है इससे नींद नहीं आती तो हमको चलने दो। सो these kind of stories, you know, they every day we hear that कि मेरे को दांत में दर्द था, निकलवा ही देती हूँ, 7,000 रुपए मांग रहा है डॉक्टर। मैंने बोला नहीं करना है, ऐसे तुम वहां जाओ, वहां जाके ट्रीटमेंट हो जाएगा। Then she's so happy। जो भी उसमें होता है, मैं क्या बोलूं, मैंने बहुत लोगों को बताया। एक लड़की है, वो उसकी शादी होने वाली है, वो वही है कि मुझे दांत साफ कर दो, हाउसमेड है, तो वो किया। तो इस तरीके से जो स्टोरीज है ना, वो हर लेवल पे ये है कि हेल्थ और लुक्स, ये दोनों चीजें सबके लिए सेम है, चाहे कोई कितना भी रिच हो या कितना भी पुअर है। तो वो जो एक इमोशन है, वो एक एम्पैथी है, वो डॉक्टर्स में होनी चाहिए। जब तक वो नहीं होगी ना, तब तक आप बहुत अच्छे से उनको ट्रीट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट प्रोवाइड द राइट सर्विस टू देम। क्लिनिक में ऑब्वियसली हर छोटी छोटी चीज की बारीकियां आई कैन सी, राइट, एंड आई कैन सी अ मिनी लाइब्रेरी। सो उसका क्या कॉन्सेप्ट है एक्चुअली? हमारे सारे डॉक्टर्स रीडर्स हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने सोचा कि मैंने एक ऐड देखी थी, मैं एक बुक क्लब की मेंबर थी, तो वहां पे मैंने देखा, मेरी एक फ्रेंड ने बताया, उसमें डाला कि कोई साउथ इंडिया में एक बार्बर है, उसमें सलून में बुक की शेल्व्स लगी हुई हैं, तो जो भी वहां पे किताब पढ़ता है वो उसको कुछ डिस्काउंट देता है। तो मैंने बोला तो इससे तो कुछ हम भी कर सकते हैं। देन शी एनकरेज्ड मी कि हाँ कर सकते हैं, एंड दैट वाज वेयर द होल कॉन्सेप्ट वाज फॉर्म्ड। तो हमने बोला ठीक है, अभी ये होगा। हर क्लिनिक में हमारी ऐसी लाइब्रेरीज हैं, ऐसे कॉर्नर्स बने हुए हैं जिसमें आप आके बैठ के पढ़ सकते हो। दिस वेरी मच इज इन यूज। जो हमारे नॉर्मल पेशेंट्स आ रहे हैं वो तो है ही, उसके अलावा भी गर्मियों में क्या होता है, एसी चल रहा है, पानी मिल रहा है आपको, ठंडा यहाँ पे मिलेगा, यू कैन जस्ट वॉक इन। अभी वी डोंट इश्यू बुक्स, यू कैन वॉक इन, जस्ट सिट हियर, रीड एंड देन गो बैक। एंड आप प्लांट्स भी गिफ्ट करते हो, आई हैव हर्ड। सो यस, हमारा एक और इनिशिएटिव है बाय द नेम ऑफ बरगद। इसमें हम प्लांट्स गिफ्ट करते हैं। प्लांट्स क्यों गिफ्ट करते हैं? जो अभी देख रहे हो ना क्या सिचुएशन हो रही है, ठीक है, एनसीआर की, यू योरसेल्फ आर सफरिंग फ्रॉम इट। वो इसीलिए है कि पेड़ कट रहा है और रीप्लांट नहीं हो रहा है। हम पहले क्या करते थे, टूथब्रशेस, टूथपेस्ट, ये गिफ्ट देते थे पेशेंट को। देन उसका कोई फायदा नहीं है, इट इज जस्ट एडिंग ऑन टू द प्लास्टिक ऑफ द अर्थ। एंड सेकेंडली, किसी ने यूज किया नहीं किया, वो अपना सबका अपना एक पर्टिकुलर ब्रांड होता है जिसको वो कंफर्टेबल होते हैं जिसके साथ। तो हमें लगा कि हम प्लांट्स गिफ्ट करते हैं। प्लांट को कोई फेंकेगा नहीं, वो उसको लगाएगा, अपने घर में रखेगा, प्लस उससे जो उसके घर में जो चेंजेस हो रहे हैं, यूजुअली हम इंडोर प्लांट्स देते हैं जो कि ऑक्सीजन जनरेट और वो जो अंदर से जो पॉल्यूशन को कम करने वाले होते हैं। और इतने अच्छे लगते हैं वो, लोग ले जाके उसको बेड साइड पे रख रहे हैं और हमें फोटोग्राफ्स भेजते हैं वो कि थैंक यू फॉर द प्लांट, और वो अच्छा लगा हमें, और अभी देखो दिस इज अडॉर्निंग हियर। सो दिस इज द वन मेन रीजन। जो भी अभी हमारे दिल्ली एनसीआर में हो रहा है, दिस इज मेजरली बिकॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन और जो भी पॉल्यूशन हो रहा है, उसको अगर कोई चीज टैकल कर सकती है तो हमारे प्लांट्स ही कर सकते हैं। सो जस्ट इट इज आवर बिट टू एड टू द मदर अर्थ एंड नेचर कि हम किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। किसी चीज को अगर एक प्लास्टिक टूथब्रश को रिप्लेस करके प्लांट से करके और उससे कोई एक इम्पैक्ट हो रहा है, सो दैट्स द मिनिमल दैट वी कैन डू। सो 10 साल से ऊपर आपको भी हो गए काम करते रहते, राइट, एंड 4 क्लिनिक्स भी आपने खोल लिए सक्सेसफुली, इतने सारे पेशेंट्स को सर्व भी किया है। तो अब आपके लिए क्या ड्राइविंग फोर्स है? जो एनर्जी अभी आप लेके आ रहे हो, जो एंथुसियाज्म और इतनी सारी मल्टीपल चीजें, ऑब्वियसली पीपल डोंट थिंक अबाउट दैट कि चलो आप अलग अलग इनिशिएटिव जहाँ पे हम लोगों को हेल्प भी कर सकें एंड मल्टीपल थिंग्स, तो अभी कहाँ से आ रहा है और आगे क्या फ्यूचर है, क्या ड्राइविंग फोर्स है? बेसिकली जो ड्राइविंग फोर्स है वो इसलिए आ रहा है कि हमारा जो पॉपुलेशन है दैट इज इंक्रीजिंग एवरी डे, ठीक है। सो जब पॉपुलेशन को केटर करने के लिए एक क्लिनिक, 4 क्लिनिक, दे विल बी वेरी लेस। नंबर 2 इज हमें कर्मा को आगे बढ़ाना है। द अंडर प्रिविलेज जो है, जितना वर्क फोर्स दिल्ली एनसीआर में है, जो कि ऑल ओवर इंडिया से आता है, ठीक है, बिहार से, यूपी से, मध्य प्रदेश से और सब जगह से लोग यहाँ आके काम करना चाहते हैं। दे नीड द राइट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। प्लस आई वांट टू रीच ईच एंड एवरी पर्सन, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑन द वर्ल्ड, वेयर we can provide the right treatment to everyone at barely any cost. Because मुझे लगता है हेल्थ जो है ना, जो ट्रीटमेंट है, राइट ट्रीटमेंट, दैट शुड नॉट बी ऑप्शनल, दैट शुड बी ए बर्थ राइट फॉर एवरीवन, ठीक है। तो अगर आप पैदा हुए हो तो आपको एक हेल्थ का एक अफोर्डेबल ऑप्शन आपके पास होना चाहिए।
तो यही मेरा अभी ड्राइविंग फोर्स है कि अभी जितनी लाइव्स को हमने टच किया है बहुत कम है. वी हैव टू इंक्रीज दिस इम्पैक्ट. आगे हमारे बच्चों के लिए, आगे उनके बच्चों के लिए वी हैव टू मेक दिस होल country, whole society, whole earth a better place to live in, which is healthier and a place to breathe in. Thank you so much. Thank you.